بڑا اہم مسئلہ یہ کہ زکوٰۃ بنتی کس پر ہے، کتنا مال ہو تو زکوٰۃ بنتی ہے۔ نصاب 52.5 تولے یعنی 612.36 گرام چاندی یا 7.5 تولے یعنی 87.5 گرام سونے کو نصاب کہا جاتا ہے۔ تو آسان انداز میں اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے تو اس آدمی پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ ابھی مزید تفصیل آگے آ رہی ہے۔ صاحب نصاب آدمی کس کو کہتے ہیں؟ صاحب نصاب آدمی آسان الفاظ میں تو وہی ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہے جو پیچھے گزرا ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہو تو اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، یہ صاحب نصاب ہے، یعنی نصاب مالدار بندہ ہے۔ 52.5 تولے یعنی 612.36 گرام چاندی یا 7.5 تولے یعنی 87.5 گرام سونا یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر پیسے یا سامان تجارت جس شخص کے پاس موجود ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا تو اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کس پر لازم ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے یا 7.5 تولے سونا ہے۔ اگر چاندی اور سونا نہیں ہے، پیسے ہیں یا سامان تجارت ہے تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اگر پیسے ہیں یا سامان تجارت ہے تو زکوٰۃ لازم ہے۔ 52.5 تولے چاندی کتنے کی بنتی ہے؟ آپ آج جائیں سنیارے کے پاس، جیولر کے پاس، اس سے پوچھیں کہ 52.5 تولے چاندی کتنے کی بنتی ہے۔ بس جو 52.5 تولے چاندی کا ریٹ ہوگا، جو اس کی قیمت ہوگی، اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہوئے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پیسے ہوئے یا اتنے کا سامان تجارت ہوا تو اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اب بازار میں جتنے بھی دکاندار ہیں، کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی دکان ہی کیوں نہ ہو، جس نے دکان میں مال ڈالا ہوا ہے، تقریباً ہر ایک کا مال 1 لاکھ کے قریب تو ہوتا ہی ہے۔ اتنا مال تو ڈالا ہی ہوتا ہے، خالی دکان تھوڑی لے کے بیٹھے گا۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کے پاس تجارت کا سامان موجود ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اور آپ آج ہی ریٹ معلوم کر لیں، ریٹ بدلتا رہتا ہے۔ 52.5 تولے چاندی کا ریٹ کیا ہے کسی کو کوئی اندازہ؟ کوئی 1 تولے کا ریٹ کیا ہے چاندی؟ 1500 روپے ہے۔ اب 52.5 سے اس کو ضرب دے لیں تو تقریباً یوں کیا لیں 70-75 ہزار روپیہ۔ اگر کسی کے پاس 70-75 ہزار روپیہ نقدی کی صورت میں جمع ہے یا سامان تجارت کی صورت میں ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ یہ جو ریٹ بتلایا کنفرم نہیں ہے، یہ اندازہ بتلایا، آپ معلوم کر لیں، اس کو 52.5 سے ضرب دے لیں، جو رقم نکلے گی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یعنی کتنا مال ہو تو زکوٰۃ بن جاتی ہے۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ ہر وہ عاقل بالغ مسلمان جس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر نقدی چاندی سونا یا مال تجارت موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اگر صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ سونا پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر کچھ نقد رقم، کچھ مال تجارت اور کچھ چاندی ہو تو ان میں سے کوئی 2 چیزیں ہوں یا ان میں سے کوئی 2 چیزیں ہوں تو ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، اور یہ ہم اکثر بتلاتے رہتے ہیں، جس میں لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں 52.5 تولے چاندی ہوگی تو زکوٰۃ لازم ہے۔ ہم نے چونکہ ابھی مزید توحید الاسلام میں کورس میں مسئلہ پڑھا ہے کہ ہم سن کر آئے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ لازم ہے۔ مسئلہ سمجھیے، اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، چاندی بالکل بھی نہیں، نقدی بالکل بھی نہیں، سامان تجارت بالکل بھی نہیں، صرف سونا ہے، پھر تو 7.5 تولہ ہوگا تو زکوٰۃ لازم ہے۔ اگر کسی کے پاس چاندی ہے، سونا بھی نہیں ہے
सामान्य तिजारत भी नहीं है, नकदी भी नहीं है, तो फिर सिर्फ हम चांदी को देखेंगे 52.5 तोले है या नहीं है। अगर 52.5 तोले है ज़कात लाजिम है, 52.5 तोले नहीं है तो ज़कात लाजिम नहीं है। ये उस सूरत में है कि जब बंदे के पास सिर्फ एक ही चीज है, और अगर उसके पास 1 तोला सोना है, 1 तोला, ज्यादा भी नहीं, सिर्फ 1 तोला सोना, और थोड़े से पैसे कुछ नकदी की सूरत में जमा रहते हैं, थोड़े बहुत तो जमा हर एक के पास रहते हैं ना, रखे होते थोड़े बहुत पैसे, या थोड़ा सा सामान्य तिजारत है, या थोड़ी सी चांदी है, अब इन सारी चीजों को जमा करेंगे। जब सारी चीजों को जमा किया, थोड़ी सी नकदी को, 1 तोला सोना को, और इसी तरह थोड़ी सी चांदी को, इन सारी चीजों को जमा किया, तो अब बताओ 52.5 तोले चांदी की कीमत से ज्यादा हुआ कि ना हुआ? 1 तोला सोना ही 52.5 तोले चांदी की कीमत से ज्यादा बन जाता है। लिहाजा इस पर क्या लाजिम है? बोले क्या लाजिम है? बोल तो लेना। बड़ा मुश्किल होता है ज़कात अदा करना, बड़ा मुश्किल है, और यहाँ तो ज़कात का लफ्ज़ बोलना भी बड़ा मुश्किल पेश आ रहा है। हज के दिनों में हाजी से भी गलती हो जाए ना, या उम्रे में कोई बड़ी गलती हो जाए, तो उस पर लाजिम होता है दम, वो दम अदा करेगा, और जब हाजी पर लाजिम हो जाए दम, तो उसका निकल जाता है दम। तो बस इसी तरह में कुछ मुश्किल सा पेश आ रहा है। अदा करना तो मुश्किल है ही है, यहाँ तो लफ्ज़ अदा करना तो मुश्किल पेश हो गया। जिस दिन आपकी मिल्कियत में मज़कूरा निसाब के बराबर पैसे आ जाए, जिस दिन पैसे आए हैं वो दिन आपके लिए ज़कात का दिन है। अगर याद न हो तो फिर हिजरी साल की कोई तारीख मुकर्रर कर लें। अक्सर लोग ये मसले पूछते हैं, यार कब पता करें? बाज़ लोग तो ये समझते हैं ज़कात बनती ही रमजान में है। ऐसा नहीं है। जिस दिन बंदे के पास पैसे आए हैं, बस यही उसकी ज़कात की तारीख है। अगले साल इसी तारीख पे ज़कात का हिसाब लगाना है। अगर किसी को नहीं याद, यार मुझे नहीं याद कि मैं कब मालदार बनाऊं, मेरे पास कब माल है, मुझे याद ही कोई नहीं, तो फरमाया कि फिर हिजरी साल के एतबार से फिर अपनी कोई सी तारीख तय कर ले, मुकर्रर कर ले। अब मर्जी है रमजान करना है रमजान कर ले, कोई और महीना करना है कोई और महीना कर ले, बस वो तारीख का तय करना जरूरी है कि मैं इस तारीख पे मालदार बना था, लिहाजा साल के बाद हिसाब लगाना है कि ज़कात बनती कितनी है। अगर याद ना हो तो फिर हिजरी साल की कोई तारीख मुकर्रर कर लें और हर साल इसी तारीख को हिसाब किया करें। दरमियान साल में पैसे आते जाते रहे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बंदे के पास आज की तारीख में 3 लाख रुपया आया है, अब अगले साल इसी तारीख पर हम हिसाब लगाएंगे कि इस वक्त पैसे कितने हैं। अब उस वक्त पैसे थे 6 लाख रुपया हो गया, अब बताएं ज़कात 3 लाख पर होगी या 6 लाख पर होगी? 6 लाख पर होगी। बीच साल में चाहे कम होते रहे, ज्यादा होते रहे, कम होते रहे, ज्यादा होते रहे, कोई एतबार नहीं है। बस एतबार इसका होगा कि साल के बाद जो दिन आया उस वक्त कितने पैसे हैं, उस पर ज़कात लाजिम होगी। मुकर्रर करदा तारीख को आपकी मिल्कियत में जितना माल मौजूद है इस पर ज़कात वाजिब होगी। कुल माल का 40वां हिस्सा या 2.5% 2.5% ज़कात की मद में देना फर्ज है। समझ आ गई? ज़कात देनी कितनी है? 2.5%, 40वां हिस्सा बनता है 100 का 40वां हिस्सा, ये 2.5% है। 2.5% 1 लाख रुपए पे कितनी बनती है? 1 लाख रुपए पे कितनी बनती है? 2,500 रुपया। 1,000 का 2.5% कितना बनता है जी? 1,000 रुपए का 2.5% कितना बनता है? देखना जरा, बड़े बड़े फेर वगैरह में 1,000 जी जी
नहीं, 1000 रुपए का 2.5% कितना बनता है? 25 रुपए। 25 रुपए, 1000 रुपए का 2.5% 25 रुपए। ये मैं वैसे पूछ रहा हूँ, वरना 1000 रुपए पर तो ज़कात नहीं है। 1 लाख रुपए का 2.5% है 2,500 रुपए। 1 लाख का 2.5% 2,500 रुपए। आगे मसले मसाइल आ रहे हैं ज़कात के हवाले से, बड़े आम मसाइल हैं सुनने वाले। ज़कात एडवांस भी दे सकते हैं और बाद में भी दी जा सकती है। आदमी हिसाब तो लगाएगा जब उसकी तारीख आएगी। अगर वो पहले भी देना शुरू कर दे, नोट करता रहे मैं इतने दे चुका हूँ, थोड़े 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 करके मैं इतने दे चुका हूँ, फिर जब उसकी तारीख आएगी उस तारीख को हिसाब लगा ले कि बनती इतनी है, अदा इतनी कर चुका हूँ। अगर तो कम अदा की है पूरी कर दे, सारी अदा कर दे, और अगर अदा ज्यादा कर चुका है तो कोई ऐसी बात नहीं, अगले साल में ऐड की जा सकती है। तो ज़कात एडवांस भी दी जा सकती है और हिसाब लगाने के बाद भी दी जा सकती है। बस ये ज़हन में रखें कि जिस तारीख को ज़कात का हिसाब करना है वो तारीख तब्दील ना हो। तारीख का याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हिसाब तो लगा रहे हैं चाहे ये बाद में, उस तारीख पे हिसाब लगा लें कि मेरी ज़कात बनती इतनी है, फिर चाहे थोड़ी थोड़ी करके बाद में दे रहे, या एडवांस देना चाहे थोड़ी थोड़ी करके एडवांस भी दे सकता है। हर साल इसी तारीख को हिसाब कर लिया करें। नाबालिग पर ज़कात फर्ज नहीं, छोटा बच्चा है उस पर ज़कात फर्ज नहीं। लड़की के बालिग होने की कम से कम उम्र 9 साल और लड़के की 12 साल है। इस उम्र में पहुंचने के बाद जब बुलूगत की अलामात जाहिर हों इन्हें बालिग समझा जाएगा। अगर बुलूगत की अलामात जाहिर ना हो तो कमरी साल के एतबार से 15 साल के बाद लड़के और लड़की को बालिग समझा जाएगा। अगर इससे पहले बुलूगत की अलामात जाहिर हो जाएं तो जब अलामात जाहिर हों उस वक्त बालिग समझे जाएंगे। तो ज़कात के वजूब की शराइत क्या हुई? ज़कात वाजिब कब होती है? नंबर 1, मुसलमान हो। सबसे पहली शर्त तो ये कि मुसलमान हो। काफिर पर तो ज़कात नहीं है, काफिर पर तो सबसे पहले कलमा पढ़ना लाजिम है। तो सबसे पहली शर्त ये है कि मुसलमान हो। नंबर 2, बालिग हो, नाबालिग पर ज़कात फर्ज नहीं। नंबर 3, अकल वाला हो, पागल दीवाना मजनून उस पर ज़कात लाजिम नहीं, उसको पता ही कुछ नहीं। नंबर 4, निसाब वाला आदमी हो, साहिब निसाब हो यानी मालदार हो। हर आदमी का ज़कात का हिसाब अलग होता है, खामिन का अलग, बीवी का अलग, माँ का अलग, बेटी का अलग। घर में हर आदमी का ज़कात का हिसाब अलग होता है। जो जो साहिब निसाब होगा उस पर ज़कात वाजिब है। तो हर एक के लिए अलग अलग हिसाब करना जरूरी है। बीवी अपने माल का हिसाब लगाए, खामिन अपने माल का हिसाब लगाए, बेटी मालदार है वो अपने माल का हिसाब लगाए, बेटा मालदार है वो अपने माल का हिसाब लगाए। हर एक के लिए अलग अलग हिसाब करना जरूरी है। ये नहीं कि घर का सरबराह अब्बू ज़कात अदा करते तो सबकी तरफ से अदा हो गई। अगर बाकी भी बच्चे वगैरह बीवी मालदार है तो हर एक का अलग अलग हिसाब होगा। अगर बीवी पर ज़कात लाजिम है और बीवी ने ज़कात अदा नहीं की और खामिद ने उसकी तरफ से अदा नहीं की तो गुनाहगार खामिद होगा कि बीवी? घर जाके मसला बतलाएं। अगर आपके पास जेवर है तो आप पर क्या लाजिम है? ज़कात लाजिम है। और आप अगर ज़कात अदा नहीं करती आप गुनाहगार होंगी। लिहाजा क्या करें? ज़कात अदा करें। और अगर बीवी की तरफ से खामिद ज़कात अदा करते तो फिर ज़कात अदा हो जाएगी। उसको ये जरूर बतला देना कि गलती तुझ पे थी, मैं न करता गुनाहगार तूने होना था, लिहाजा मेरा तुझ पे एहसान है कि मैंने तेरी तरफ से ज़कात अदा कर दी है। ये चंद एक मसले मसाइल ज़कात के हवाले से आपके सामने रखे। अभी मज़ीद सबक के अंदर मसले मसाइल, बड़े आम मसले मसाइल जो आपको मैंने अभी और मज़ीद बतलाने थे, क्योंकि वक्त हो चुका है। बाकी इंशाअल्लाह कल के सबक में पढ़ेंगे। अल्लाह समझ भी अता फरमाए, दीन पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाह सबको दीन की समझ अता फरमा, दीन समझकर अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह सब की कोताहियों को, गलतियों को माफ फरमा। अल्लाह अब तक जितने गुनाह हुए या अल्लाह जानबूझ के किए, भूले से हुए, सच्चे दिल से तौबा करते हैं अल्लाह हम सब के तमाम गुनाहों को माफ फरमा।
اب تک جتنی عبادات کی ہیں اللہ تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام عبادات میں اخلاص عطا فرما، جو آگے عبادات کریں گے اللہ اس میں بھی اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، جو بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں سب کو صحت کلی عطا فرما، سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اللہ جو حضرات روزے رکھ رہے ہیں، ذکر و اذکار تسبیحات کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی، سب کی عبادات کو قبول فرما، اور جو یا اللہ نہیں کر پا رہے اللہ ان سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی بیماری ہے، کوئی مجبوری ہے، عذر ہے، یا اللہ ان کی تمام بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرما، تمام رکاوٹوں کو یا اللہ حل فرما۔ ان ساتھیوں نے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا، سب کے نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک